So up to this what we completed. Up to this we just get an idea what is actually operator in C. Okay, and there are two different way to categorize the operator. The first category depends on a number of operands. So as per the number of operands, हम लोग तीन कैटेगरी में ऑपरेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी. यूनरी के पास एक ही ऑपरेंट होगा, बाइनरी के पास 2 ऑपरेंट्स होंगे एंड टर्नरी के पास 3 ऑपरेंट्स होंगे. ओके, सो दैट्स दैट. एंड नाउ प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग ऑपरेटर्स को 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. These are the 8 different name of the categories as per the property: arithmetic, relational, logical, assignment operator, conditional operator, increment, decrement, bitwise, and special. Now in last session we complete this two, arithmetic and relational, but एक थोड़ा सा overview ले लेते हैं. On arithmetic operator we have 5 different operators. We have 5 symbols which comes under the umbrella of arithmetic: plus, minus, into, divide, and modulus. So guys, we learn this and हम लोगों ने डिस्कशन किया था कुछ कि इंटीजर प्लस इंटीजर देन इंटीजर as per this example. Okay, 2 plus 3 equal to 5, 2 plus 3.1 equals to 5.1 and something like that. So हमारा कंक्लूजन ऐसा था कि अगर either of the operand प्लस के साथ, जैसे लाइक प्लस में पहली लाइन नंबर 21 की बात करें, so प्लस के साथ मेरे पास दो ऑपरेंड्स है, both are the type of integer, then the result will be the type of integer. But either of the operand, जैसे यहाँ पे float कर दिया second operand में, first operand में, otherwise दोनों operand अगर float किए then result will be always the float. So same rule is applicable with actually remaining operators. Arithmetic categories में same rules apply होगा modulus को छोड़ के. So हमने float के sorry division के साथ ये same rule apply करने की try की, check किया. So 2/3 it just written 0. Why? 2/3 में actually मुझे आंसर मिलना चाहिए था 0.67. But answer is actually 0. Why? Because integer divided by integer, answer is integer. 2 is a type of integer, 3 is a type of integer, then what appears? Result will be the integer. Okay, result will be the integer. So that's that. But either of the operand मुझे actually float करना है, तो मुझे आंसर में float मिलेगा. So what I did, मैंने डेटा चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ 0.0 किया. 2 divided by 3.0, 2.0 divided by 3, otherwise 2.0 divided by 3.0. So you will get actually float as an answer. And after that we learned one more thing, that is modulus. So यहाँ पे हमने conclusion लिया था कि modulus cannot work with the floating point type of data. Okay, so either of the operand, अगर जैसे ये numerator, otherwise denominator, otherwise first operand or a second operand, अगर float type का है, then it generate a compile type. That is the problem. Otherwise that is the limitation of the modulus operator. So काफी टाइम पूछा जाता है, like which operator cannot work with the floating point data type. Okay, otherwise floating point data. So answer is modulus. Modulus cannot work with the like floating point data. Then guys हम यूनरी की बात करें तो ये एक्चुअली सबके सब ऑपरेटर बाइनरी है. बाइनरी का मतलब क्या? कोई भी ऑपरेटर आप लीजिए, सबको दो ऑपरेंड्स की जरूरत है अपना वर्क करने के लिए. ऑल दिस ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म द टास्क. बट इसमें माइनस ऐसा है जो यूनरी की तरह भी वर्क कर सकता है. माइनस कैन वर्क एज ए यूनरी ऑल्सो. ओके, सो अगर मैं ऐसा लिखूं इंटीजर a इंटीजर b इक्वल टू 20, मुझे b का अपोजिट a में स्टोर करना था. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज 20. मुझे इसका अपोजिट स्टोर करना था. अपोजिट मतलब इफ इट इज पॉजिटिव आई वांट टू स्टोर अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ दैट b. इफ इट हैज अ नेगेटिव वैल्यू तो मुझे उसका पॉजिटिव स्टोर करना था. देन आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन -b. So -b will generate the opposite of whatever the data in b. So right now the value of b is 20. So it generates a negative, मतलब -20 it will generate and store in a b and store in a. Okay, so अब देखिए मैंने माइनस के साथ एक ही ऑपरेटर यूज किया so that it is unary. So minus operator can work as a unary as well as binary. So this is actually exception. Okay, ये एक exceptional case है. So अगर आपको पूछे कोई in arithmetic operator which operator can work as unary or binary, then your answer must be actually minus. Minus can work as a unary as well as binary. Now what about the second category? Second category हमने लिया था relational operator. In relational all the operators are the binary. And we have 6 different symbols actually, or group of symbols: less than, greater than, equals to, less than, equals to, and not equal. So guys generally हम लोग उसको if के साथ use करते हैं. If a greater than b, then print a is max and b is max and something like that. But कल हम लोगों ने कुछ वर्क किया था. हमने ऐसा कुछ किया था कि if I have a equal to 10, b equals to 20, consider all these are the integers. Okay, all these are the integers. Let I just create 3 integers.
ओके एंड अगर उसको एज ए अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज करूं लाइक c इक्वल टू a ग्रेटर देन b, सो इज दिस अलाउड और नॉट? सो बट ऑफ दिस इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। एंड अगर हम c का आंसर प्रिंट करें, यस अभिषेक, व्हाट इज द आंसर? What will be the content? What will be the data of C? Yes, anyone? 0. 0? Why 0? Sir, A is less than 20. हाँ, तो ये कंडीशन, ये रिलेशन एक्चुअली रॉन्ग है। Yes. सो फाइनली हम लोग के कंक्लूजन पे आए थे कि रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स 1 और 0। 1 कब? when relation is true, and 0 कब? जब relation false होगा। ओके, सो ये हम लोग कुछ कंक्लूजन पे आए थे। एंड फाइनली उसके बाद हम लोग एक और चीज पे डिस्कस किया था कि सर अभी तक हम लोग इफ, एल्स, फॉर लूप उन सब में रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते थे। सो नाउ द नेक्स्ट डाउट वाज कि अगर रिलेशनल ऑपरेटर हमको 0 और 1 देते हैं, देन इफ किस पे काउंट करता है? a ग्रेटर देन b पे या 0 1 पे? सो फाइनली इसके बाद हमारा कंक्लूजन ऐसा था कि इफ कंडीशन और वी कैन से दैट लूपिंग्स, जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, सो आई कैन से दैट कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स, conditional statements or looping statements like works on zero non-zero. It always works on zero non-zero. That means what? Zero non-zero मतलब कि अगर आपने conditional statement को zero दिया, that means it will consider it as a false, और non-zero दिया, that means it is considered as a true. So यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका एग्जांपल लिखे तो इफ 1, एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ भी उसको मैसेज प्रोवाइड करूँ, लाइक लेट अस से printf हाई, सो इस प्रोग्राम को ऑलवेज आउटपुट हाई आएगा, एल्स में कभी भी नहीं जाने वाला। व्हाई? बिकॉज हमने उसको इफ में 1 दे दिया है। फाइन, नॉट इवन 1, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। 1 की जगह आप लिख सकते हो 100, यू कैन जस्ट से -50, so all these are nothing but non-zero values. So non-zero values के लिए always condition true. So that's that guys. तो ये हो गए अपने दो operators, arithmetic and relational. Now the next operator is logical operator. Next operator is logical operator. So what is the use of logical operator? Can you please tell me? Anyone? Checking, like suppose if you want to check multiple conditions. It is used to check multiple conditions. It is used to check multiple conditions in a same statement, or you can just write down multiple conditions. Check तो नहीं बोल सकते हम लोग, okay? Check तो नहीं बोल सकते, but you can say that if you want to write down, used to write multiple conditions in a same line, in a single statement, using a single statement. Okay, so इसमें हमारे पास टोटल 3 चीजें, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ओके, इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड का सिंबल है गाइस डबल एंड, लॉजिकल और का सिंबल है like it's a pipe, double pipe, and logical not is exclamation mark. So let me start with the logical end. So what is the use of logical end? So something ऊपर हमने लिखा है कि सर लॉजिकल ऑपरेटर्स का कामकाज ही है मल्टीपल कंडीशंस एक साथ लिखना। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम ही है एक साथ मल्टीपल कंडीशंस लिखना, बट लॉजिकल एंड का वर्किंग कैसे होगा कि मान लो मैंने कंडीशन 1 लिखा एंड कंडीशन 2 इज देयर एंड कंडीशन 3 इज देयर, ऐसे में मल्टीपल एंड कंडीशन लिख सकता हूं, n number of conditions. Condition in the sense you can just use a relational operator, guys, you can use arithmetic operator, you can directly pass the data. Okay, conditional की जगह मैं statements भी पास कर सकता हूँ, यहाँ पे statement भी हो सकता है, it's not a big deal. But how it works, ये work कैसे करेगा
if the first condition is true, it will just navigate, otherwise it will forward the control to the second one. मतलब अगर ये पहला वाला true है, then वो second पे जाएगा, second true है then third पे जाएगा, third true है then fourth पे जाएगा, and onwards it works. And if all these are the true, all these conditions are the true, then it returns true, otherwise it returns false. All these conditions are true, then it returns true, otherwise it returns false. मैं practically बताऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये. So here I have, so किसी ने मुझे बोला कि सर I have 3 numbers, you have to find maximum from 3. मेरे पास 3 नंबर है, आपको 3 में से मैक्सिमम निकालना है. So what we can do guys, 3 नंबर में से मैक्सिमम निकालना है. मैं यूजर से वैल्यू फेच नहीं करना चाहता, मैं फिक्स कर दूंगा, सेट कर देंगे 3 वेरिएबल्स. सो इंटीजर a b c, लेट आई से a equals to 10, हम लोग सॉरी, a equals to 10, b is equals to 20, c is equals to let I say 15. so आंसर आना चाहिए b is max, b is maximum. so मुझे कैसे कंपेयर करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, लाइक b कब सबसे मैक्सिमम होगा या a कब सबसे मैक्सिमम होगा, जब a का वैल्यू b से भी बड़ा है एंड a का वैल्यू c से बड़ा है. so if a greater than b and a greater than c, अगर a का वैल्यू a and c दोनों से बड़ा है, then I can say a is max. ओके, उसी तरीके से सेकंड कंडीशन हम कैसे लिख सकते हैं, अब b max से कब बोलेंगे कि b का वैल्यू ऐसे max है and b is greater than c, we can say that b is max. मैं सिर्फ मैसेज में b लिख रहा हूँ. ओके, and else if c greater than a and c greater than b, then क्या बोलेंगे है यश महर्षि, c is max. else I can say like I have no idea, maybe all are same. okay, हो सकता है कि तीनों के तीनों नंबर सेम, तो else सेम, सब सेम होगा तो else में चला जाएगा. so logical one dot c. okay, so what is the expected answer, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, printf b. अपने डेटा के हिसाब से b आना चाहिए. so here we have, बट गाइज ठीक है, ये हम समझ सकते हैं कि इसको ऐसे लिखा जाता है, बट इंटरनली ये कैसे वर्क करता है वो चेक करना है. जैसे मैं अभी लिखता हूँ a इक्वल टू 100, हम थोड़ा डेटा अपडेट कर दे, b का वैल्यू 20 है, c का वैल्यू 15 है, what will be the answer, but obvious a will be the answer. but now the question is how it works, because हमको रिलेशनल ऑपरेटर कल के पता है ना, कल हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर जो डिस्कस किए वो हमको पता है कैसे वर्क करते हैं. तो जब आप इफ के अंदर जाओगे तो पहले a ग्रेटर देन b, तो a एंड b का रिलेशन चेक किया जाएगा. a is greater than b guys, in our case a is greater than b. yes, 1. yes. तो यहाँ हम लोग को 1 मिलेगा. एंड अब a greater than c, and it also returns 1. it also returns 1. so अब हमारा if कंडीशन अगर वर्क कर रहा है, अगर हमारा if कंडीशन वर्क कर रहा है, मतलब if कंडीशन को भी नॉन जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए, if कंडीशन को भी नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा तभी वो वर्क करेगा ना. सो इसका आंसर एक्चुअली 1 आना चाहिए था, तभी if कंडीशन वर्क करेगा. सो मुझे एक्चुअली एंड का कंसेप्ट समझना है. एंड टू कैसे वर्क करता है भाई, हम लोग को ग्रेटर देन पता है, हमको if पता है, बट नाउ आई एम वंडरिंग लाइक मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ये कि हाउ एंड विल वर्क. सो गाइस एक बार इसको लॉजिकल एक बार इसको सेव कर देते हैं, ठीक है. एंड let us just do one thing, मुझे इतना if else नहीं करना है. what I am doing, मैं डायरेक्ट इसका आंसर प्रिंट करने का सोच रहा हूँ, a greater than b and a greater than c, and the second condition was b greater than a and b greater than c, यहाँ पे c greater than a and c greater than b. that's that. so but obvious यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, a greater than b, that is 1. अपने डेटा के हिसाब से यहाँ पे 1 and a greater than c है क्या, हाँ 1. what about this one, 0 and 0. नहीं, हाँ 0 and 1. b greater than a, 0 and 1. and 1 है ना, 0 and 1. what about this one guys, 0 and 0. 0 0 and 0. so now my question is like how this and will work, ये and कैसे वर्क करेगा, 1 and 1
सो इट मस्ट रिटर्न 1. यहाँ पे 1 Yes. एक्सपेक्टेड था. तो एंड का मतलब गाइस जनरली मैंने काफी सारे सेशंस देखे, काफी लाइक मेरे सीनियर फैकल्टीज के मैंने सेशन देखे. देन व्हाट दे जस्ट जनरली से कि अगर मेरे पास दो ऑपरेंट है, ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2, देन अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तो हमारे पास दो चीजें होगी, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. अगर इस तरीके से मेरे पास कुछ वैल्यूज है, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर? इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? True, false, false. True. Then 1 minute. False. ये तो बाइनरी पे नहीं सीखा था ऐसा हम लोगों ने. वो गेट थे कुछ, एंड गेट ने और गेट ने, तो ये से ही काम करता है. ये भाई भी ऐसे ही काम करता है. सो आप देखिए ना, 1 मतलब ट्रू, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर उसके हिसाब से, अगर मैं बाइनरी टेबल अपना जो ट्रुथ टेबल था उसके हिसाब से देखूं तो आंसर कुछ ऐसा मिलना चाहिए, 1 0 0. So let me run. Oh yes, here it is. Okay, 1 0 0. But still मुझे कुछ डाउट गया था कि ना भाई इतना तो नहीं होता होगा. मतलब like my question is, अगर ये पहला कंडीशन ही फॉल्स है, देन एंड वाले भाई साहब सेकंड के पास जाएंगे या रिटर्न वहीं से रिप्लाई कर देंगे? समझो मेरा क्वेश्चन क्या है. मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लो मैं एंड मतलब दिस वन, इसको मैं ऐसा कुछ डेटा दे रहा हूँ, 1 एंड 1 एंड 0 एंड 1 मिनट, या फाइन, 0 एंड 1. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास तो बहुत रिलेशनल ऑपरेटर थे, मैंने एक साथ 5 कंडीशन लिखी है, 5 रिलेशनल ऑपरेटर को मैंने कंबाइन किया है. सो माय क्वेश्चन इज, ये जो मेरा एंड वाले भाई साहब है वो पांचों के पांचों को चेक करके आंसर देंगे या कहीं भी 0 आ गया वहां पे स्टॉप हो जाएंगे? तो 0 आ गया वहां पे स्टॉप हो जाएंगे. प्रूफ चाहिए भाई, ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते. देखो मेरा क्वेश्चन समझो, 1 मिनट है. मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एंड का यूज हमने ऐसा समझा था, इट इज जस्ट यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस. इट इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन. कंडीशंस की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा स्टेटमेंट्स, कंडीशन की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा स्टेटमेंट्स. सो एंड इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल स्टेटमेंट्स, बट एंड एक्सपेक्ट समथिंग. एंड का काम का जैसा था कि भाई आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करे. So what I did, a greater than b, it will return, in my case it returns 1. a greater than c, in my case it returns 1. तो अगर दोनों 1 है then answer is 1. और इसके लिए हमने ट्रूथ टेबल देखा, कि हाँ इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से शायद वर्क कर रहा है, बिकॉज़ नेम इज सेम. अभी से म्यूट कर देंगे. Okay, name is actually like end, logical end. So maybe जो अपने बाइनरी में या अपने like बाइनरी लैंग्वेज में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रूथ टेबल लर्न किया, it will be like this. इस तरीके से कुछ वर्क कर रहा है. But now my question is, सर ये जो end है वो पूरा चेक होगा या कहीं भी फॉल्स आया तो वहां से चेकिंग बंद कर देगा? तो आप लोगों ने आंसर दिया कि नहीं सर, जहां पे 0 आया वहां पे वो रुक जाएगा. बट चेक करते हैं ना इसको एक बार, ये वर्क करता है कि नहीं. ओके, सो मेरे पास थोड़ा ऑफ द ट्रैक चल रहा है. ऑफ द ट्रैक इन द सेंस सी लैंग्वेज में ही है, बट थोड़ा दूसरा कोई पॉइंट ले रहा है. ओके, देन आफ्टर वंस अगेन हम लोग लॉजिकल एंड पे आते हैं. या फाइन गाइस, सो हियर आई हैव integer a. Can I just write down like this, printf hello, a equal to printf hello? Can I write down like this? Yeah, anyone? No. Yes, anyone? Is it allowed? Yes, sir. Yes, guys. No, sir. Not allowed or allowed? So this is allowed, guys. मैं ज्यादा कुछ टाइम पास नहीं कर रहा. It is allowed. Printf function always returns the value. Printf function always return करता है. कितना रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? आपने क्या प्रिंट करवाया? हेलो. हेलो कितने कैरेक्टर्स है? 5. तो जितना कैरेक्टर, जितना टाइम उसका कर्सर आगे बढ़ा, जितने टाइम कर्सर आगे बढ़ेगा उसका वो काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा. वो चीज काउंट करके आपको रिटर्न करेगा. तो हेलो, देयर आर द 5 कैरेक्टर्स इन हेलो, सो ए की वैल्यू 5 होगी. लेट मी चेक. सो हियर वी हैव हेलो एंड 5. इज इट फाइन? यश, अभिषेक, हेत, महर्षि? Yes, sir. Yes. Fine. Okay.
सो अगर मैंने इसकी जगह वड़क्कम लिखा होता तो आउटपुट 7. वेलकम इन 7. डन. सो नाउ हम लोग को चेक क्या करना था, लॉजिकल ऑपरेटर वाली कहानी चेक करनी थी ना. सो लेट आई जस्ट डू वन थिंग. So x is equal to, let I say statement 1 and statement 2 and statement 3. What is that statement? हम लोग थोड़ी देर के बाद सोचते हैं. And statement 4. And finally मुझे actually x की वैल्यू प्रिंट करनी थी. So x का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 0 होगा, बिकॉज एंड नाम का जो बंदा है, लॉजिकल एंड नाम का जो ऑपरेटर है, वो अपने ट्रूथ टेबल के हिसाब से क्या रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स. आइदर ट्रू और फॉल्स इट विल रिटर्न. ओके, आइदर ट्रू और फॉल्स इट विल रिटर्न. सो मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी. इट विल बी 1 और 0. इट विल बी 1 और 0. यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट नाउ मुझे चेक क्या करना था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम वाज स्टेटमेंट 1 अगर एग्जीक्यूट हुआ, इट इज फॉल्स. स्टेटमेंट 1 अगर रन हुआ और वो अगर फॉल्स है, देन स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूट ऑन. स्टेटमेंट 1 अगर फॉल्स है, देन स्टेटमेंट 2 रन होगा कि नहीं होगा, दैट वाज द क्वेश्चन. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं स्टेटमेंट 1 की जगह लिख रहा हूं printf हाई. सो गाइस, बट ऑब्वियस दिस हाई मस्ट एग्जीक्यूट. या हाई रन होगा. हाई रन होके अपने को क्या देगा, 2. 2 इज 0 और नॉन जीरो. नॉन जीरो मतलब कंडीशन ट्रू और फॉल्स. एंड वर्क करेगा कि नहीं. ट्रू. यस, वर्क. 0 कहां से आया. सर वहाँ एक ही एंड लिया है. सॉरी, क्या बोल रही है. 10% का सिंबल है 2 के बाद. फाइन फाइन फाइन. ये बिटवाइज एंड हो गया. शाबाश. चलो, सो आंसर इज 1. ठीक है ना. अपने लॉजिक पे ज्यादा नहीं, मतलब वो डाउट नहीं करना है. हम लोग सही पढ़ रहे हैं. अब एक को 0 कर रहा हूं मैं. आंसर इज 0. आंसर इज 0. एक को नेगेटिव कर देते हैं. सो नेगेटिव इज आल्सो अलाउड. नेगेटिव इज आल्सो अलाउड, बट आंसर विल बी 1. ठीक है. सो नॉन जीरो जीरो कंसेप्ट पे ही वर्क करता है. सो वी हैव नॉट टू वरी. Okay, we have not to worry about that. So now let I just remove this statement. Now what about this printf high? We know printf high हमको क्या देगा. It returns 1. Sorry, printf high क्या देगा. high print करके क्या return करेगा. How many characters it print? 2. So answer will be 2. What about hello? 5. 5. What about this by? Will return 3. मतलब तीनों के तीनों इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है, तीनों के तीनों इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं. नाउ लेट आई जस्ट से वेलकम. मतलब इंटीजर इन द सेंस चारों, ये 4 प्रिंटफ है, चारों के चारों नॉन जीरो वैल्यूज रिटर्न करेंगे. सो जस्ट चेक हाई, हेलो, बाय, वेलकम एंड बट. सो इट वर्क्स फाइन. वी नो इट वर्क्स फाइन. ओके. और देखो, ये जो वैल्यूज रिटर्न हुई है वो प्रिंट नहीं होगी. इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है. यहाँ पे हम लोग को क्या मिलने वाला है गाइस. x is equals to 2 and 5 and 3 and 7. वो डेटा प्रिंट होने के बाद, डेटा प्रिंट होने के बाद हम लोग को ऐसा कुछ मिल रहा है. So we know all are the non-zero values. That means the answer will be 1. So answer 1 आना चाहिए था. We have, but हम confused कहाँ पे थे हम लोग का. So what I am doing, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ and in the place of this printf by, in the place of this printf by, हम लोग इसकी जगह 0 रख देते हैं. Manually 0 put कर देता. So now the question is, welcome will execute. अगर welcome execute करता है, that means पूरा का पूरा रन होगा, then answer 0 और 1 मिलेगा. और welcome execute नहीं होता, then what is the conclusion? जहां पे 0 आएगा, condition वहीं पे stop हो जाएगा. Is it fine? Is it done? So how logical AND works? Yes, sir. How logical AND works? तो अगर आपको कोई प्रूफ मांगता है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए. ठीक है. आज तक आई होप आप लोगों ने सबने एक्सेप्ट करके चला था कि ऐसे ही चलेगा. आप लोगों ने खुद ने नहीं सोचा कि लाइक सीरियसली ऐसे वर्क करता है या पूरा चेक करता है. ठीक है. सो गाइस, हाउ इट वर्क्स, हाउ लॉजिकल एंड वर्क्स. इफ all the conditions are true in the sense, what I can say, non-zero values are there. If all the conditions are true, then will return 1.
if either of the condition is false, then means 0, then what my computer will do, then compiler will stop checking and return 0. Is it fine, guys? Is it fine? Yes. Alam sir, Abhishek, Yes, sir. Sobariya sir, Karan sir, Yes, Smith sir. sir, Head sir, Itikiran, Zil, Zemis, okay, काफी सारे students ने join किया है. So I hope this is clear to everyone. So अब मैं logical OR को copy paste मार सकता हूँ ना? What is logical OR? How it works? How logical OR works, guys? एक भी And कंडीशन one ट्रू condition होगी should be satisfied. कोई एक condition true होगी. If all the conditions नहीं, if either of the condition is true, then it It will stop return the one. checking or not. पहला condition, पहला चीज stop करेगा checking. चेक करना पड़ेगा, ऐसे हवा में बात नहीं करना, हम चेक करके ही बात करेंगे ना. So let I just save this one as logic_6.c. और कोई एक कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हाई क्या रिटर्न करेगा? 2. So what I'm doing, मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ 1 मिनट, so मुझे ऑपरेटर्स चेंज करने हैं. So हाई मुझे 2 रिटर्न करेगा. So 2 is true or false? True. ट्रू तो आगे जाना चाहिए. नहीं सर. नहीं मतलब हेलो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? तो दिस नहीं होगा. So just check high. High print होगा. Fine. But my next question is, तो मुझे हेलो प्रिंट करना है भाई. Can I just do this? अगर मेरा ऐसा कुछ एग्जांपल किसी ने दिया हुआ है, मुझे किसी ने ऐसा एग्जांपल दिया है. Okay, here I have. Okay, now इसको भी कमेंट ही रखते हैं. यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है. मतलब let I just write down 0 here. Then hello will print or not? Yes sir, print होगा. Hello print. Yes, What sir. about Vodacom? No sir, it will not. No. So is it fine, guys? So I hope this is clear to everyone. देखो आप लोगों ने कॉलेज में कभी ये नहीं देखा होगा, ये सब चीजें PCS या Infosys इन सब के इंटरनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. मतलब अगर आप कंपनी में अप्लाई करते हो तो बेसिक कंसेप्ट्स मांगते हैं. एंड दिस इज द बेसिक. ओके, कोई भी लैंग्वेज में देखो ये इसी तरीके से वर्क करता है. बट अब दिस बुलियन वैल्यूज होगी तो ट्रू फॉल्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो 0 सॉरी 0 नॉन 0. So that's that. So if either of the condition is true, means a non-zero value is there, then my compiler will stop checking. And then my compiler will stop the checking and returns 1. And कब मुझे 0 मिलेगा? If all the conditions are false. False. Then this one will return 0. 0 means false. False. That's that. So that is something about the logical. Okay, logical not just equal to or not equal to convert करने के लिए काम होता है. इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, but we will ignore this right now. Okay, उसको bitwise में डिटेल में लर्न करें. But now my next question is, all these are binary or unary? ये सब कैसे binary है कि unary है? Logical operators are binary or unary? They are binary. देखो ना, इस एंड को 2 बंदे चाहिए, है ना, इस एंड को 2 बंदे चाहिए. एंड दिस गाय आल्सो रिक्वायर्ड, इसका आंसर चाहिए, जो भी इसका आंसर है वो चाहिए, एंड उसके बाद वाली कोई चीज चाहिए. इज इट फाइन? सो नाउ मुझे किसी ने क्वेश्चन दे दिया. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन. 1 and 2 or 0 and 4 or 4. What will be the answer? बताओ, अब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. 1. कैसे?
सर स्टेप बाय स्टेप बता भाई। वो पहले 1 एंड 2 चेक करेगा, उसका आंसर रिटर्न एक करेगा एक 1, एक एक 1 एंड 2 का आंसर आया 1, चलो और फिर 1 एंड 0 चेक करेगा तो उसमें भी 1 आ जाएगा, एंड देन बट मेरा क्वेश्चन कंपाइलर नहीं, हाँ ठीक है, 1 एंड 0 पे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही नहीं। 1 एंड 0, हाँ दैट इज द क्वेश्चन गाइस। 1 एंड 0 पे खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ने वाला है? नहीं सर, नहीं बढ़ेगा। अभिषेक, यश, हर्ष, नो सर, नहीं बढ़ेगा। मतलब यहाँ से आंसर रिटर्न हो गया? यस चेक करें, यस। करना पड़ेगा। ओके, मैं इसको साइड में रख के पहले लिख लेता हूँ। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक रामबाण इलाज है ना, प्रिंट एफ, पता चल जाएगा भाई साहब आगे बढ़ रहे। सो इंटीजर x इज इक्वल्स टू 1, मैं पहले 1 ही लिख देता हूँ, एंड देन 2 और 0। अब 4 की जगह मुझे 4 चाहिए था, सो लेट आई राइट डाउन printf abcd, so it returns 4, है ना, और printf कैपिटल abcd, तो वो भी मुझे 4 देने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेशन के स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था, बट अब ये आंसर मुझे 1 मिलना चाहिए, बट चेक किए बिना आगे नहीं बढ़ रहा है। सो लॉजिकल अंडरस्कोर 6.c, लेट मी रन दिस, व्हाट इट रिटर्न्स? इट रिटर्न्स ओनली 1। Where is the ABCD? ABCD, ये ABCD प्रिंट नहीं हुआ गाइस। Just check, this ABCD is not displayed because यहाँ पे इन दोनों की कंडीशन 2 और 0, 2 और 0, आंसर इज लाइक 2 और 0 इन द सेंस यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 1 एंड 2 का आंसर 1 आया था, तो 1 और 0, so it returns 1। और यहाँ पे बाकी की कहानी खत्म, आगे काम करना ही नहीं है मुझे आगे कहीं पे कोई चीज वर्क करनी ही नहीं है, तो ये चीज एग्जीक्यूटिव है। सो बी केयरफुल, कहीं भी बीच में लॉजिकल और डाला, कहीं भी आपने बीच में लॉजिकल और लिखा और उसको वहां पे उस ऑपरेंट पे लॉजिकल और को एक्चुअली इन दोनों पे वर्क करना है, कहीं भी 1 मिला तो आगे जाएगा ही नहीं। बट गाइस माय रिक्वायरमेंट इज ये पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो पीछे वाला पोर्शन था वो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड व्हाट टू डू जी, ये पूरा रन करना है। आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस वन, मुझे ये पूरा एग्जीक्यूट करना है, मतलब इसका भी रिजल्ट आना चाहिए, इसका भी रिजल्ट आना चाहिए। मेरा इसे यहाँ पे 1 था, ओके, अदरवाइज 10 था। चलो सर अलग अलग रन कर सकते हैं? अलग अलग नहीं, वी कैन जस्ट डू द ब्रैकेट, हम लोग ब्रैकेट कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो ब्रैकेट मतलब भाई पहली प्रायोरिटी इसकी है, पहली प्रायोरिटी इसकी, इसका आंसर क्या आएगा? रिटर्न्स 1। अब ये लॉजिकल और डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, सेकंड ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसने मुझे 1 दिया, so whatever the answer is there, वो आंसर कुछ भी दे, मुझे उस आंसर से मतलब नहीं है, मतलब इसका आंसर देन लॉजिकल और, बट अब इस फर्स्ट वाले का आंसर 1 ही आएगा। वो दोनों का आंसर आने के बाद लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल और अप्लाई होगा। सो प्रायोरिटी अगर आप सेट करना चाहते हो, अगर आप कंप्यूटर की डिफॉल्ट प्रायोरिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपनी खुद की प्रायोरिटी सेट करना चाहते हो, जस्ट यूज द पैरेंथेसिस गाइस, जस्ट यूज अ पैरेंथेसिस। इज इट फाइन? यस सर। Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम? No sir, no problem. Fine, okay, 1 minute. So these are the logical terms. Yes. So ये सेम प्रोग्राम में हम लोग अगर प्रायोरिटी की बात करें, तो अगर मुझे इन सबको एग्जीक्यूट करना है, then what to do? यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट कर देते हैं, here let me put the round bracket। अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज वरना 0 एंड, तो एंड वाला काम नहीं करता। ठीक है, सो राइट नाउ आंसर विल बी 1, बट ABCD एंड ABCD, ये ABCD रन नहीं होगा, दिस ABCD विल नॉट एग्जीक्यूट बिकॉज ये एंड वाले ने पहले मुझे 1 दिया, तो ये 1 आने के बाद 1 और 0, तो सॉरी 1 एंड 1 और, तो और वाला पार्ट रन नहीं होगा। सो एक ABCD आना चाहिए था, स्टिल इट इज नॉट देयर गाइस। क्यों? ये आना चाहिए था कि नहीं? हाँ सर। No क्यों sir. करना? नहीं आना चाहिए था ना अभिषेक भाई, क्यों भाई? Yes sir. सर क्यों नहीं आना वो 1 and 2 पहले ही ट्रू हो जा रहा है, तो हाँ देखो 1 and 2 यहाँ पे पहुंचे, इसने मुझे 1 दिया,
इसका आंसर 1 आने के बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर के पास ही पहुंच रहे हैं। इसका आंसर 1 आने के बाद मुझे लॉजिकल ऑपरेटर के पास पहुंचना ही पड़ रहा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के पास पहुंचे तो वो आगे जाने ही नहीं देगा। बट मुझे रन करना है, कैसे करूं? मुझे ऑप्शन बताइए। मुझे इसका आउटपुट चाहिए, मुझे दोनों को रन करना। हाउ टू डू, हाउ टू एग्जीक्यूट बोथ द थिंग्स। किसकी है? बट ऑब्वियसली दिस ब्रैकेट हैविंग द हायर प्रायोरिटी, क्योंकि वो लेफ्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो पहले इस ब्रैकेट का आंसर आएगा। हाँ ठीक है, देन और का मतलब उसको बाईपास करके, मतलब बाईपास नहीं कर सकते आप सेकंड ब्रैकेट पे जाने के लिए। तो वहां पहुंचोगे तो भाई साहब बोल देगा ठीक है आंसर इज 1, मैं सेकंड ब्रैकेट को तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। राइट फाइन। ओके हाँ सर समझ आ गया। एंड गाइस देखो, आज मैं, कल तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था,